सर सबसे पहले स्पीच शिवांग ने दी थी। शिवांग, हु डिलीवर्ड स्पीच फर्स्ट? दीदी, I deliver the speech first. शिवांग, सबसे पहले स्पीच किसने दी थी? दीदी, सबसे पहले स्पीच तो मैंने दी थी। नम्रता दीदी, who delivered the speech first? I think you delivered the speech first. दीदी, सबसे पहले स्पीच किसने दी थी? मेरे ख्याल से तुमने सबसे पहले स्पीच दी थी। निधि, who delivered the speech first? मिनी, दी शिवांग भैया डिलीवर स्पीच फर्स्ट। शिवांग भैया डिलीवर्ड स्पीच फर्स्ट। रोशनी, who delivered the speech first? Shivang delivered the first speech. सबसे पहले स्पीच किसने दी थी? शिवांक ने सबसे पहले स्पीच दी थी। रूपल जी, who speech who delivered first speech? Who delivered the first speech? सॉरी रोशनी, रूपल जी का नाम नहीं लेंगे आज, वो केवल सुनेंगी। अच्छा, who is rest? I am rest. Neeta ji, who delivered the first speech? Sorry, I Roshni. think you are using first form of deliver. Who delivered Sorry. the first speech? Roshni ji, Shivang delivered the first speech. सॉरी, Shivang delivered the first speech. Sorry. no, Okay, it's fine. Neeta wait, ji, Shivang, आज wait, complete the process, Roshni. do not complete. They are asking wrong question. Stop. Thank you. This is today's sentence. Where will you write this sentence, guys? Sir, we will write this sentence in past indefinite chapter. Okay, please Sir, write down this W of sentence. chapter. Please write down this sentence in be past. Let's see the miracles of B chapter. चलो बी चैप्टर के चमत्कार देखते हैं। Deepika, who made the sentence yesterday? Sir, Shivang made the sentence yesterday. कल किसने बनाया था वाक्य? सर, कल शिवांग ने वाक्य बनाया था। नम्रता, who made the sentence yesterday? We made sentence today. Deepika asked me. Sir, who made the sentence yesterday? Guddu made the sentence yesterday.
सर कल वाक्य किसने बनाया था? कल गुड्डू ने वाक्य बनाया था। You can give imaginary answer or you can give real answer. It depends on you. Namrata, who made sentence yesterday? Sir, everybody made sentence yesterday. कल Sir, किसने वाक्य बनाया था? सभी ने कल वाक्य बनाया था। हर किसी ने। Everybody मतलब हर सभी। कोई। हाँ, Everybody. हर किसी ने सर। नीता जी, who made the sentence yesterday? Namrata ji, I made the sentence yesterday. नीता जी, कल किसने वाक्य बनाया था? नम्रता जी, कल मैंने वाक्य बनाया था। रोशनी, who made the sentence yesterday? Priya made the sentence yesterday. रोशनी, कल किसने वाक्य बनाया था? कल प्रिया ने वाक्य बनाया था। Who is rest? I am rest. I am Nisaji, also rest. who made the sentence yesterday? Good morning, Nisaji. Okay. Sorry. Neha made the sentence the yesterday. निशा जी, कल किसने सेंटेंस बनाया था? कल नेहा ने वाक्य बनाया था। नेहा, who made the sentence the yesterday? She made the sentence yesterday. नेहा, कल वाक्य किसने बनाया था? दी, कल वाक्य उनने बनाया था। Mini, who made the sentence yesterday? Ritu made the sentence yesterday. Complete the process, Di. मिनी, कल वाक्य किसने बनाया था? दी, कल वाक्य रितु ने बनाया था। थैंक यू मिनी। तुम जल्दी से सीख रही हो चीजें, जल्दी जल्दी। वो सो गई थी, तुमने जगा दिया। थैंक यू। आगे बढ़ो। शिवांग भैया, who made the sentence yesterday? Mr. Beggar made the sentence yesterday. शिवांग भैया, कल किसने वाक्य बनाया था? मिस्टर बैगर ने कल वाक्य बनाया था। Who is rest? Nobody is rest, so I can ask to Neeta ji again. Neeta ji, who made the sentence yesterday? ये तुमने बहुत अच्छा किया शिवांग। अब वहां से जवाब मिले या ना मिले, तुम्हारा प्रश्न पूछने का दायित्व पूर्ण हो गया। तुमने अपना प्रश्न कर लिया। दैट इज वेरी नाइस। Come again, Shivang. No problem. Who has to make this sentence, guys? Sir, I have to make this sentence. Okay, go ahead. Okay. Sir, this sentence is related to be past. This is WH negative sentence. Firstly, I will take WH word, which is and the WH word is who. Later on, I will take first form of the verb and the second form of the verb, and the second form of the verb is did.
Then thereafter I will use not. Then I will use come, and lastly I will use yesterday. Finally I will take a question mark there, sir. Very nice, Deepika. But the sentence is incorrect. Let's see who can make it correctly. अब दीपिका तुम पूछो. Who has to make this sentence? Who has to make this sentence? I have to make this sentence. This sentence is related to B chapter. It is this is a B past. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the WH word, and the WH word is, and the WH word is who. Later on, I will take the main verb, and the main verb is was. Thereafter, I will take not not thereafter I will take come. Thereafter I will take noun, and noun is come. Thereafter I will take yes adjective noun, and the adjective noun is yesterday, and lastly I will put the question mark. Thank you. Very Who nice, has Neha. to make the sentence? Wow, good. I have to make this sentence. This sentence is related to be past. It is an interrogative sentence. This sentence is a WH sentence. Okay. Firstly, I will take the WH word, and the WH word is who. Later on, I will take the main verb, and the main verb is was. Thereafter, I will take the negative not, and it is a not, and uh, lastly, I will take the noun, and the noun is a yesterday. And finally, I will put the question mark. And okay. Very nice, very nice, very nice. Ask Namrata. Who has to make this sentence? I have to make this sentence. I have to make this sentence. This sentence is related to be past, and it is an WH sentence. Firstly, I will take the WH word, and the WH word is who. Thereafter, I will take the main verb, and the main verb is was. Then I will take the negative word, and the negative word is not. Later on, I will take the adjective or noun, and the adjective or noun is coming. And lastly, I will take the object and extension, that is yesterday.
Very good. Ask. Have- Who have to make this sentence? Who has to make this sentence? इतना सन्नाटा क्यों Sir, लगा can I दिया? make one more? This Can I this try one sentence. more? Okay, Shivang, but one by one. Neetaji is Yes, ready. sir. Yes, sir. This sentence is related to B past chapter. It is an interrogative sentence. This sentence is WH word. Uh, Firstly, I will take uh, WH word, and the WH word is who. Thereafter, I will take main verb, and the main verb is watch. Um, Later on, I will take a negative word, and the negative word is not. Later on, I will take adjective or noun, and this is the come. And lastly, I will put the question mark. Sorry, objective or extension, and that this is the yesterday. एक बात बड़ी अच्छी है नेताजी, आपने बहुत जल्दी सुन सुन के सब बोलने लग गए। ये आपने सिद्ध कर दिया हमारे गुरु मंत्र को कि अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता होना जरूरी है। सेंटेंस बने ना बने, इस क्लास में सेंटेंस बनाना कभी भी महत्वपूर्ण नहीं है। अब आप पूछिए अगले से किसी से। रोशनी, नहीं नहीं, अब आपको वही पूछना है जो बाकी लोग पूछते आ रहे थे, अगर याद हो तो। who has to make this sentence? वेरी नाइस। I have to make this sentence again. This sentence is related to be past, and it is an WS sentence and interrogative sentence also. And firstly, I will take the WH word, and the WH word is a who. Later on, I will take the main verb, and main verb is a was. Thereafter, I will take the negative word, and the negative word is a not. Thereafter, I will take the verb, first form of the verb, and the first form of the verb is a come. And in last, I will take the adjective or noun, and adjective and noun is a yesterday. And finally, I will put the question mark. Now, who has लेकिन to make बेटा, this sentence? ये ए इतनी सारी मात्रा में आया तुम्हारा, बाय गॉड। सर उसको भी पता है कि मेरे से बहुत ज्यादा ये निकलता है, वो बार बार बोलती है। दूर हो जाएगा, डोंट वरी। शिवांग, डू यू वांट टू ट्राई अगेन? Yes, I wanna try again. I have to make this sentence. This sentence is related to be past, and it is an WH sentence. Firstly, I will take the WH word. कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? इट इज NWH। It is a WH sentence. Firstly, I will take the WH word, and the WH word is who. Thereafter, I will take the main verb, and the main verb is was. Later on, I will take the negative word. The negative word is not. Then I will take the adjective or noun, and the adjective or noun is present. And lastly, I will take the object or extension, that is yesterday.
Now who else have to has to make who else has to make this sentence? वेरी नाइस यार शिवांग। पहली बार यहाँ पे किसी के मुंह से एल्स का प्रयोग सुन के बहुत अच्छा लगा। A toffee, note down. अभी तक मैं बस यूज करता था इसको, आज तुमने प्रयोग किया, मोगैम्बो खुश हुआ। इसलिए टॉफी दिया। अब अगर और कोई नहीं बनाना चाहता तो फिर मैं बना देता हूँ। If anybody does not want to make, I will make. I'm trying. I make sir. Do you Sir, want to try? can I make? Do you want to try again? Yes, sir. I want to try again. Do you wanna try again? Yes, sir. I uh, uh, I will try. Do you wanna try again? Yes, yes, sir. Do you wanna try again? Do you wanna try again? No, sir. Eh? So lastly, I can make Okay, it will do. this. This sentence. This sentence related to be past. It is in a negative sentence. And negative. It is a negative sentence. And negative. It is a negative sentence. Oh, there you are. This sentence. It is a negative sentence. Uh, it is a negative sentence. This sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is who. Thereafter, I will take the main verb, and the main verb is was. Later on, I will take the negative word, and the negative word is not. Thereafter, um, I will take the adjective noun, and the adjective noun is yesterday. Yes. Uh, and lastly, I will put the question mark. Very nice. Sir, I forgot. Who had to make this sentence? Thank you, sir. I have to make this sentence and I wanna try again. Please try again. I have to make this sentence. This sentence is related to be past and it is a WH sentence. Firstly, I will take the WH word and the WH word is who. Then I will take the main verb and the main verb is was. Later on, I will take the adjective or noun and the adjective or noun is absent. And lastly, I will take the extension and the extension is yesterday. Well tried. Well tried, Shivang. Well tried. Now, who else has to make? Deepika, do you wanna try again? Wow.
सर प्लीज आप कर दीजिए। ओके, थैंक यू। सभी लोग म्यूट में सुनिएगा ताकि वॉइस क्लियरिटी रहे। दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू बी पास्ट। लग नहीं रहा है कि वो बी पास्ट का है, लेकिन हम बी चैप्टर के चमत्कार देखने जा रहे हैं बच्चों। लग तो ऐसा रहा है जैसे पास्ट सिंपल का है, और हम हिंदी मीडियम वाले जैसे ही आना शब्द देखते हैं, मर जाते हैं, मिट जाते हैं, लुट जाते हैं, लेकिन कम जरूर लगाते हैं। बोलो भारत माता की जय। जय। और बच्चों में तो मैं यही सिखाना चाहता हूँ कि इंग्लिश इज नॉट द रियल इंग्लिश, इज नॉट लैंग्वेज ऑफ ट्रांसलेशन। और इसके बहाने एक बहुत ही मजेदार नियम भी आज तुम्हारे सामने आ रहा है, और सब रिकॉर्ड हो रहा है, तो कभी भी वीडियो देख सकते हो बेटा। तो दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू बी पास्ट। यह वाक्य बी पास्ट से संबंधित है। इट इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस। यह एक सकारात्मक वाक्य है। फर्स्टली आई विल टेक द सब्जेक्ट। सबसे पहले मैं कर्ता लूंगा, एंड द सब्जेक्ट इज हु। दोस्तों बहुत सारे WH वर्ड की चर्चा की, लेकिन कहीं पे भी हमने हु लिखवाया नहीं है अभी तक। आपको ढेर सारे लिखवा दिए हैं और ढेर सारे आगे लिखवाऊंगा, लेकिन हु जो है जबलपुर की भाषा में बोले तो हु WH वर्ड इज अ कंट्री पर्सन। गूगल ने कंट्री ले लिया, करेक्ट, जबलपुरिया लैंग्वेज। और कंट्री शब्द शिवांग ने जरूर सुना होगा, फीमेल का हमें नहीं पता उन्होंने सुना है कि नहीं, तो उनके लिए एक इंग्लिश शब्द दे देता हूं। हु इज अ क्रुक्ड वर्ड। CROOED। It is crooked. It is crooked. CROOKED. Sorry, I was wrong. So this is a crooked word. Yes. ये सब्जेक्ट की तरह भी काम करता है, यह कर्ता की तरह काम करता है। ये यहाँ पे करता है। उसके बाद मुख्य क्रिया आपने सही बताई थी, बी। मिस्टर बी जब पास्ट में आते हैं तो वॉज या वर्ब का रूप धारण करके आते हैं, मेन वर्ब। लेटर ऑन आई विल पुट द, पुट यहाँ पुट लगाना बच्चों आगे से, आई विल पुट द नेगेटिव वर्ड, एंड द नेगेटिव वर्ड इज नॉट। लेकिन ये भी यहाँ पे जरूरत नहीं। फर्स्टली आई विल टेक द सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट इज हु। Thereafter I will take the main verb, and the main verb is was. Subsequently I will take the noun or adjective. Sorry, I repeat. Later on I will take the adjective or noun. तत्पश्चात मैं विशेषण या संज्ञा लूंगा, and the adjective or noun is absent। ये शब्द अपने आप में नकारात्मक है, तो हर जगह नहीं लगाने के लिए नॉट लगाना जरूरी नहीं होता बच्चों। इसका बड़ा अच्छा उदाहरण आप फिल्मों में देख सकते हैं।
हीरो बड़े प्यार से बोलता है हीरोइन से आई लव यू, लेकिन जरूरी नहीं है कि हीरोइन बोले बट आई डोंट लव यू। वो ऐसे भी बोल सकती है बट आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। नकारात्मक शब्द लगा के नॉट की जरूरत को खत्म कर दिया जाता है। सब्जेक्ट मेन वर्ब एडजेक्टिव, एब्सेंट इज एन एडजेक्टिव। बहुत से लोग तो पहली बार इसकी स्पेलिंग देखेंगे, अभी तक वो उसको अबसेंट 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 करते थे, आज के बाद भगवान की कृपा से एब्सेंट बोलेंगे। अब मैं हिंदी भी लिख दूंगा। Lastly, I will take the extension, and the extension is yesterday. दोस्तों, सेंटेंस बनते समय डिस्क्रिप्शन के समय भले ही अजीब लगा हो आपको, लेकिन अब एक दूसरे से पूछ के देखिए, आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल लगेगा। आप काल्पनिक उत्तर दीजिएगा। आई एम स्टार्टिंग विद दीपिका। दीपिका, who was absent yesterday? Sir, she was absent yesterday. दीपिका, कल कौन नहीं आया था? सर, कल वह नहीं आई थी। अब अगर हम अक्षरशः अनुवाद करना चाहें बच्चों, तो मैं ऐसा भी पूछ सकता हूँ, कल कौन अनुपस्थित था? लेकिन वो कैसा लगेगा, सोच के देखो। बोलते ही समय कैसा लग रहा है? बिल्कुल राधा छाप यहाँ पे बल्ब जल रहा है हिंदी मीडियम का। चाहो तो आप बोल सकते हो, आप दोनों हिंदी लिख लो अपने लिए समझने के लिए, लेकिन बचपन से याद करो, आपको क्वेश्चन पेपर में आता था कि इस मुहावरे का भावार्थ लिखें। शब्दार्थ नहीं, शब्दार्थ तो कुछ और है। शब्दार्थ तो है दाल में कुछ काला है। अब जब ये बोला जाता है दाल में कुछ काला है, तो वहां सामने दाल नहीं होती है। दाल में कुछ काला है का भावार्थ है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। दिस इज भावार्थ। तो बचपन से हम शब्दार्थ भावार्थ जानते आ रहे हैं। तो द लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन भावार्थ, नॉट शब्दार्थ। और आपको शब्दार्थ दे दे के आपकी लाई लुटवाई गई है, उसके लिए आप दोषी नहीं हैं, कोई और दोषी है, सिस्टम दोषी है। लेकिन अब हम बुरी और पुरानी बातों को क्यों याद करें? अगर हमारे सामने कुछ अच्छा है तो हम उसको सहज स्वीकार करें और एक दूसरे से बोलें। दीपिका, प्लीज गो अहेड। Shivang, who was absent yesterday? Didi, Saho was absent yesterday. शिवांग, कल कौन एब्सेंट था? दीदी, कल साहो एब्सेंट था। नम्रता दीदी, who was absent yesterday? Pune was absent yesterday. दीदी, कल कौन नहीं आया था? अरे कल प्यून नहीं आया था। नीता जी, who was absent yesterday? Namrata ji, Rupal was absent yesterday. नीता जी, कल कौन नहीं आया था? दीदी, please give 5D. And Namrata didi, you give 3D. Because in this batch we cannot use the Actually, candidate. she don't know na. She don't know this rule. That's why. What? Okay. Continue. एक्चुअली नीता जी कि आप जब भी इस बैच के किसी पर्सन का नाम लेंगी तो आपको 5D लगेगा ना, 5 का दंड। Okay, okay. Sorry. नेक्स्ट टाइम से आप कोई दूसरा नाम लीजिएगा। ओके। Okay, sorry. Who was absent yesterday? My maid was absent yesterday. कल कौन
नहीं आया था। कल मेरी नौकरानी नहीं आई थी। नेहा, who was absent yesterday? Didi, it is not absent, it is absent. Okay. Meenu was absent yesterday. नेहा, कल कौन Neha Didi, नहीं आया था? please keep patience. No, Neha Didi, firstly give 3D because I am rectifying her mistake and you are putting. So now please give 3D. Practice makes perfect. That is करत करत अभ्यास की जड़मति हो सुजान. Sorry. करत करत अभ्यास की जड़मति हो सुजान. Uh, Here you are. That is लीजिए. Didi, please use idioms, not interactive. Okay. You एक can मिनट. use your register. Okay. Uh, okay. Goodness and askas. That is नीकी और पूछ पूछ. It sucks. That is लाई लुट गई. The power is cut. That is लाइट गुल हो गई. Yes. Beta ji, that is absent, not absent. Okay. So please come again. Neha, okay. Neha, who was absent yesterday? Meenu was absent yesterday. नेहा, कल कौन नहीं आया था? मीनू कल नहीं आई थी. Okay. Minnie, who was absent yesterday? The Anjali was absent yesterday. मिनी कल कौन नहीं आया था? The कल अंजलि नहीं आई थी. Rupal the who was absent yesterday. Nisha the रूपल जी से नहीं पूछना है, शी इज नॉट वेल. Nisha the who was absent yesterday. She was absent yesterday. Beta, Nishadi, you give 3D because she is used by Deepika Didi. You are sleeping. So now awake and give 3D. Like draws like चोर चोर मौसेरे भाई. Tom, Dick and Harry. Era gera नत्तू कहरा. Sorry. Sorry. I can sad. मैं उदास हो सकती हूँ. Okay, Sivan. No, be happy. Come again. Don't become sad. Always be happy. The So rule of come this again, class. please. Be happy. Okay, Neha, ask the question. Who was absent जी. yesterday. Oh. People watch absent yesterday. Sorry, your main verb is wrong. Okay. According to your subject. Priya. Okay.
Ria was absent yesterday. बेटा शिवांग सही तो है, देखो हम बोल के दिखाते हैं। कल लोग नहीं आया था, कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? कल लोग नहीं आया था। सर मेरे दोस्त का नाम लोग होगा शायद, उसने हाँ, बताया नहीं है हमको। उसका नाम है लोग, तो कल लोग नहीं बता आया देता था। तो बता देना था नाम उसको अपना। Ria was absent yesterday. दी कल कौन नहीं आया था? कल रिया नहीं आई थी। हाँ। Who is rest? I am rest. Okay, Rosni, who was absent yesterday? Pratham was absent yesterday. रोशनी कल कौन नहीं आया? कल प्रथम नहीं आया था. Who is द्वितीय rest? तो आया, द्वितीय तो आया था ना। Who is rest? If nobody is rest, you can ask me. Sivang, who was absent yesterday? Didi, I was absent yesterday. शिवांग कल कौन नहीं आया था? कल मैं ही तो नहीं आया था, बाकी तो सभी आ रहे। Nobody is दीपिका, rest. when was he absent? Sir, he was absent yesterday. वह कब नहीं आया था? सर वह कल नहीं आया था. Change the subject and ask. Okay, sir. Shivang, when were they absent? Didi, they were absent day before yesterday. शिवांग, वे कब नहीं आए थे? दीदी वे परसों नहीं आए थे। It's me or Deepika दीदी? It's me. It's for you. Day before yesterday बहुत कम सुनने मिलता है ना बेटा। Okay, Namrata दीदी, when was my girlfriend absent? You should know. I don't know na, that's why I'm asking. When was your girlfriend absent? ये भी अच्छा उत्तर है बच्चे। थैंक यू नम्रता। नम्रता ये एक टॉफी और नोट कर लो, ये भी अच्छा उत्तर है। गुड। नम्रता दीदी मेरी जीएफ कब नहीं आई थी? तुम्हें जानना चाहिए कि वो कल नहीं आई थी, कब नहीं आई थी। नम्रता इसको ऐसा बोलेंगे, तुम्हें मालूम होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए, ऐसा। शिवांग, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वो कब नहीं आई थी। मुझे नहीं मालूम, इसलिए तो आपसे पूछा था। ओके, आई थिंक शी वॉज एब्सेंट यस्टरडे। मेरे ख्याल से वो कल नहीं आई थी। रोशनी, व्हेन वॉज शी एब्सेंट? शी तो सर गर्लफ्रेंड बस हुआ है ना। व्हेन वॉज शी एब्सेंट? Mini, you can ask. Mini, when was your friend absent? My friend was absent yesterday. आपकी दोस्त कब नहीं आई थी? दी मेरी दोस्त कल नहीं आई थी।
रोशनी दी, when was Rohan absent? Winnie, नीता जी, Rohan was absent yesterday. दी, रोहन कब नहीं आया था? Winnie, रोहन कल नहीं आया था. Who is rest? I am ready. Neha, who was your sister absent? Come again, Didi. Come again, Di. Sorry, come again. Neha, who was your best friend absent? Could not listen carefully. Sorry, Di. अब तो मैं तो कहे सॉरी बोल रहा, हम तो बाल बच्चे वाले हैं ना, क्या करें। दीपिका, एक नया राउंड शुरू करते हैं और इस बार प्रतिबंध जारी करते हैं। जिसने भी यस्टरडे रखा उसको 5 का दंड देंगे, ठीक है। When was Atul absent? Deepika. Sir, Atul was absent today only. अतुल कब नहीं आया था? सर, अतुल केवल आज नहीं आया था. वाह। नम्रता, नहीं, अब ऐसा मत करो, अब पूछो हु इज रेडी टू आंसर। who is ready to answer? I am ready to answer. Okay, Neha Didi, after you. नहीं नहीं, शिवांग पहले तुम बोलो, तुम अच्छे से एक्सटेंशन लगाओगे, फिर नम्रता और फिर नेहा। Shivang, when was Nidhi sorry. Didi, When? 5D. Okay. Can I? Okay, continue. After some time, I got. When was she absent? Didi, she was absent on Monday. शिवांग, वह कब एब्सेंट थी? दीदी, वह मंडे को एब्सेंट थी। नम्रता दीदी, when was Mahendra absent? Mahendra was absent day before yesterday. दीदी, महेंद्र कब नहीं आया था? महेंद्र परसों नहीं आया था। सर, इज इट राइट? नीता जी, सॉरी, निधि, when both of them absent? When was? दीदी, where is your main thing? Sorry. When was both of them? According to subject, your main verb is wrong. Okay, when were, yeah. So there you are. Were both of them absent? Thank you, Sivang. Nidhi Patel, I am asking to you. नम्रता, हमारे साथ 3 बार बोलो। एब्सेंट, Absent, एब्सेंट, absent, एब्सेंट। absent. Nidhi, when were both of them absent? We were absent in Christmas holidays. वो दोनों कब नहीं आए थे? क्रिसमस की छुट्टियों में नहीं आए थे।
Roshni, when were student absent? Neetaji, when were student absent? एक मिनट निधि, अकेला खाली ये सब्जेक्ट लगाना अजीब सा महसूस हो रहा होगा ना? तो इसमें हमें कोई विशेषण लगाने की जरूरत पड़ती है। अभी हम लगवा दे रहे, आगे से सभी लोग ध्यान रखना। पहले म्यूट कर लो क्योंकि काफी खरखराहट आ रही है, तो हमारी वॉइस की क्वालिटी गड़बड़ हो गई है, तो सुनाई भी पूरा नहीं देता है, लेकिन वो गूगल की माया है कि वो कम से कम टाइप होके आ जाता है। अगर आपको एक स्टूडेंट की बात करना है तो या तो फिर आप आर्टिकल ए लगाएं या कोई दूसरा विशेषण लगा दें, जैसे व्हेन वाज द न्यू स्टूडेंट, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि आप एक की बात कर रही हैं। और जब एक से ज्यादा लगाना हो तो उसमें भी ऐसा करें हमेशा, व्हेन वर द 5 स्टूडेंट्स या व्हेन वर दीज स्टूडेंट्स एब्सेंट। तो दीज शब्द अपने आप में बहुवचन को प्रकट करता है, तो सामने वाला समझ जाएगा, या फिर संख्या लगा दे। पूछो। When were senior students absent? Nidhi, the senior students were absent on नीता 1 जी, आप January. देखिए स्क्रीन पे देखिए, अपसेट टाइप कर रहा है गूगल। Yes, sir. आप हमारे साथ 3 बार बोलिए, एब्सेंट, Absent, एब्सेंट, absent, एब्सेंट। absent. Neha, come again. Sorry, Nidhi. Neetaji, Sorry. when were the senior students absent? The senior students were absent on 1 January. बोलिए हमारे साथ, ऑन On 1st of the January। 1st of the January. 1st of the January। 1st of the January. वैसे तो इंग्लिश के लहजे में बोलें तो ऐसा बोलना पड़ेगा, 1st of the January। January। January. और ये लोग इंग्लिश मीडियम वाले बोलते हैं 1st of Jan। 1st of Jan. निधि, सीनियर स्टूडेंट 1st of Jan को absent थे। Neetaji, I will ask then you. Okay. निधि, when was Neetaji, senior when was student कब absent थे? हाँ, sorry. सीनियर निधि, सीनियर स्टूडेंट 1st of Jan को एब्सेंट थे। निधि, when was driver absent? Sorry, I'm done. Are you calling Mini? Yeah. Who is ready? I'm ready. Okay, I am Neha. also ready. When was your driver absent? My driver was absent only Shivratri. Only on Shivratri। My driver was
absent only on Shivratri? नेहा, आपका ड्राइवर कब एब्सेंट था? जी मेरा ड्राइवर सिर्फ शिवरात्रि को एब्सेंट था। ओके। मिनी when when were absent when were your friend your best friend absent? Sorry. Sorry, Di. Sorry, and a friend is also done maybe. Okay. Use when were your class teacher absent? Why are you using were? Plural numbers. You are not using plural. checked. Okay. When were teacher absent? Teacher is a singular number, Neha. Okay. एक मिनट When रुकना पड़ेगा। नेहा, म्यूट फॉर वन। वेरी नाइस। पता नहीं किसी ने इस छोटी सी घटना को ध्यान से देखा कि नहीं। मैं बहुत छोटी छोटी चीजों को नोटिस करता हूँ, आप भी कीजिएगा। अभी नेहा से कुछ गलती हो रही थी और नम्रता उसको संबोधित कर रही थी। नम्रता, अनायास तुम्हारे मुंह से फ्लुएंटली 2-3 सेंटेंस निकले। तुमने इस चीज को नोटिस किया? दिस इज रियल इंग्लिश। मतलब जब तक आप एक सेंटेंस बोलेंगे जो हमने लिखवाया है या बुलवा रहे हैं, तो वो तो मजबूरी है, वो तो लकीर का फकीर है। भले ही हम उसमें सब्जेक्ट और एक्सटेंशन बदलवा रहे हैं, मजबूरी में आप बदल भी रहे हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त जैसे ही आपके मुंह से स्पॉन्टेनियसली इंग्लिश निकलती है बच्चों, स्पॉन्टेनियसली मीन्स स्वाभाविक रूप से, अपने आप, ऑटोमेटिकली भी बोल सकते हो आप उसको, दैट इज द रियल इंग्लिश। और आपको पता भी नहीं चलता है दैट अभी जैसे मैंने URL सेंड किया फर्स्टली रूपल जी के, देन she joined Deepika, and she, without any instruction, she started asking question to the next guy. So always hello, good evening, how are you, ये तो हमने तब आपको दिया था बच्चों जब आप आके चुपचाप बैठ जाते थे, कुछ नहीं करते थे, पता चला 4 लोग बैठे और सब ऐसे देख रहे हैं पगला टाइप के। तो अब क्या करें? तो भैया गुड इवनिंग तो करो यार, हाउ आर यू कर लो। लेकिन आते ही साथ मैंने, जैसे 2 लोग आए या 3 लोग, आई स्टार्टेड वन क्वेश्चनिंग विथ दीपिका, एंड वेरी प्रैक्टिकल, बिकॉज आई गेव यू पास्ट सिंपल यस्टरडे, आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग विथ पास्ट सिंपल टुडे। अब वहां हमने देखा कुछ लोग सोए सोए से आ रहे थे, वो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग में ही लगे हुए थे, जबकि यहाँ क्वेश्चनिंग आंसरिंग शुरू हो गई थी। यू वर यूजिंग पास्ट सिंपल टेंस विदाउट एनी extra effort. So this is real English. A little bit is coming out of your mouth now, a little more will come out of your mouth automatically, but you know, तुम बाद में नेहा चाहो तो फोन लगा के नम्रता से पूछ लेना कि नम्रता दीदी आपने सोच समझ के वो इतना सारा बोला था, तो बोलेंगे नहीं वो तो निकल गया अपने आप। और ये जो निकलना है, मेरे मुंह से तो ऑटोमेटिकली निकल ही जा रहा है आजकल। मतलब मैं सोचती हूँ कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मेरे मुंह से निकल जाता है। जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे किसी के बारे में और वो सडनली आ गया, तो मेरे मुंह से निकला वो थिंक ऑफ डेविल, डेविल इज कम। ही वाज माय सीनियर, तो मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट ऐसा ऑटोमेटिकली हुआ। एंड दूसरा केस,
lab assistant searching some chemical and he didn't find. मैम नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, और फाइनली हमने कहा सामने देखो रखा हुआ है, उसको मिला, तो हमने कहा ओ सो देयर यू आर। दोस्तों ऐसे छोटे छोटे संस्मरण आप भी जरूर सुनाएं, भले इतना सा हुआ हो आपके दैनिक जीवन में, वो दूसरों को प्रेरित करने के काम में आता है। अभी हम सबको छोड़कर चलो इसी पे चर्चा करते हैं। और कोई है जिसके मुंह से कुछ अनायास निकला हो, प्लीज। और अभी अगर कुछ याद नहीं आ रहा है तो दोस्तों ये हम आपको फील्ड वर्क दे दे रहे हैं। क्लास के बाद जब भी याद आ जाए कोई भी घटना, आप पूरा हिंदी में बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो हरा वाला बटन दबाइए व्हाट्सएप का, और जो भी आपके साथ घटना हुई है वो बोल दीजिए। नम्रता, खाना वाना खाने के बाद आज रात में अगर ध्यान रहे तो वो हरा सर बटन एक्चुअली दबाना और पूरा ये जो तुमने अभी सुना है ना वो पूरा बोल देना और शेयर कर देना, बिल्कुल ऐसे ही शब्दों में। हाँ नेहा जी, इरशाद। सर एक्चुअली आज मैंने पावनी से यूज किया था, कुछ वो बोल रही तो मैंने उससे 2-3 बार कम अगेन बोला, तो उसने भी उसको फॉलो किया। क्या मौसी इसका हिंदी मीनिंग क्या है, ऐसा पूछा, तो मैंने बोला बेटा कम अगेन का हिंदी मीनिंग होता है, फिर से बोलिए। तो वो भी उसने भी 2-3 बार मुझसे ट्राई किया, हम दोनों ने साथ में कन्वर्सेशन किया सर। सर मेरे को तो बहुत मौका मिल जाता है कि जो पहले दिन पढ़ा दूसरे दिन जाके, तो मैं 4-5 बार जाके यूज कर ही लेती हूँ। हर दिन का मेरा नियम है। आपने कल बोला था व्हाट इज द हार्म, तो आज मैंने 4-5 क्लास में जरूर बोला होगा ये। इट सक्स वो भी मैंने 4-5 क्लास में जरूर बोला था उस दिन। तो मेरा तो ये रूटीन बन गया है कि जो मैंने सुना दूसरे दिन 4-5 जगह कैसे भी वो मौका वो क्रिएट करना है और बोलना है, लाइक दैट। I agree with you. I 100% agree with you कि sometimes create the atmosphere, माहौल बनाओ, हिंदी में कहते हैं ना माहौल बनाओ, create the atmosphere। क्योंकि ऐसे अपन सीधे सीधे ये रट्टा, ठीक है हम सब्जेक्ट बदलवा रहे हैं, एक्सटेंशन तुम्हें जबरदस्ती अब तुम्हें हलक में हाथ डाल के गला दबा के निकलवा रहे हैं, नहीं तो सब वहां यस्टरडे रखे पड़े थे, तो वो तो खैर हम करवाएंगे ही। लेकिन उसके अलावा ऐसा कुछ भी आपके जीवन में होता है तो आप क्लास के अलावा जब भी कुछ याद आए, चाहे तो आप टाइप करके भेजिए टेक्स्ट, या आप सीधे हरा बटन दबा के वॉइस मैसेज भेज दें, तो हमें सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा। हम उसको दूसरे ग्रुप में भी शेयर करेंगे, लेकिन ये फीडबैक दे जरूर। हाँ रिव्यू इज रेस्ट ऑल्सो। कम अगेन। सर रिव्यू इज रेस्ट। रिव्यू इज रेस्ट सर। राइट, रिव्यू इज रेस्ट। वो कुछ ऐसा संयोग या दुर्योग बोले, संयोग नहीं दुर्योग, जिस दिन बताना था उस दिन तुम एब्सेंट हो गई। सर लेकिन मैं प्रेजेंट थी, मेरा भी रिव्यू अभी रेस्ट है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली। अभी बता दे, लगे हाथ। सर डी अल्फाबेट comes first. Come again, your voice chopped. Sorry, Deepika. D alphabet comes first. Why are you doing Runthai?
No, Review will after me, announce on that way. after me, who delivered the speech? Yes, I have delivered the speech after you, Sivang. So, the review of Namrata Didi will come first. will come first after ओके Dikka Didi. दोस्तों, शिवांग तुमने बिफोर का यूज नहीं किया था ना यार अपने स्पीच में, इसलिए इनमें हमें कहीं बताने का मौका नहीं मिला और ये लोग सब वही पुराना इन फ्रंट ऑफ यूज करती रही। नम्रता यूज्ड इन फ्रंट ऑफ, नम्रता ने इन फ्रंट ऑफ का यूज किया था। But I think I have given you before. This is my second speech before you. अब second speech में before बोलना बेटा। Namrata also used would nicely and correctly. नम्रता ने would का अच्छा और सही प्रयोग किया था, which I did not teach you, जो कि मैंने आपको नहीं सिखाया। Namrata also used one sentence which I generally speak. Actually, this sentence is not my own sentence. I read this sentence somewhere. Who never made mistake, never did anything. Namrata used this sentence. जिसने कभी गलती नहीं की है मतलब उसने जीवन में कभी कुछ किया ही नहीं। And Namrata mentioned that Jhasar says, who never made mistake, he never did anything in the life. Namrata also used according to preposition correctly and nicely. नम्रता ने according to preposition का सही एवं अच्छी तरीके से प्रयोग किया था। दीपिका, अब तुम समझ गई होगी कि रिव्यू आज जाके हम तुरंत क्यों तैयार हो गए बताने के लिए, क्योंकि रिव्यू बताते समय मुझे पास्ट सिंपल की बहुत जरूरत पड़ती है और कल मैंने पास्ट सिंपल दिया, तो अब मैं उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में बता पा रहा हूँ खुशी खुशी। वो Sir, I saw this. हैबिट Yes. है, तो वो पास्ट सिंपल के बाद रिव्यू बताने में थोड़ा अच्छा लगता है। Namrata gave one nice sentence. I'm from the city of white tigers. Nice sentence. Riva is the city of white tigers. मैं सफेद शेरों के शहर से हूँ। You can see or we can see was a nice sentence used by Namrata. Miss Namrata used can chapter also. नम्रता ने कैन चैप्टर का भी प्रयोग किया था। नम्रता ऑल्सो यूज्ड वन फॉर वाला वाली, दिस वन ये वाला, दैट वन वो वाला, ब्लू वन रेड वन, नीला वाला लाल वाला, फर्स्ट वन पहला वाला, सेकंड वन, नाइसली। समटाइम्स नम्रता यूज्ड यू नो। बच्चों, आगे जब भी स्पीच दो तो जहां पे भी खाली स्थान आए और अटकने लगो तो यू नो बोलना। इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, ये बहुत खूबसूरत लगता है उस जगह को भरने के लिए, यू नो। और ऐसा लगता है यू आर रियली टॉकिंग टू द पीपल। ऐसा नहीं लगता है कि आप कुछ रट के आए हो और वॉमिट कर रहे हो। He is the grandmother of my home. Sentence was so beautiful, different sentence. Who is Namrata? My younger sister. अब हमने ही इसलिए बोला बेटा कि तुमने ही यूज किया था,
बच्चों, पहली स्पीच में सब अपने घर के पुरुषों को शी बना देते हैं और स्त्रियों को ही बना देते हैं। स्वाभाविक गलती है, सबसे होती है। सेकेंड स्पीच में वो 50% कम हो जाती है। थर्ड में करीब करीब खत्म हो जाती है। आप पुरुष को ही से ही संबोधित करने लग जाते हो और स्त्री को शी से, क्योंकि हिंदी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो आपको आदत नहीं है। डोंट वरी अबाउट इट। Namrata also used short-term goal and long-term goal. मेरा इसका हम हिंदी तो नहीं कर पाएंगे, आप कभी कभी इसको बीच में यूज कर लिया करें। जैसे शायद नम्रता ने बोला था, माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू लर्न इंग्लिश एंड माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू बी द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। Imaginary sentence, something like that. Namrata beautified her speech with the help of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 idioms and 1 interactive. It is the complete review of Namrata. Now, finally, Deepika. I was born and raised. She already asked me, sir, can I use it? I allowed her that you can use it. पहले एक राउंड हम इसका खेलेंगे। हम अगर आपसे क्वेश्चनिंग बन जाए तो अच्छा है, क्वेश्चनिंग आंसरिंग से अच्छा रहता है। दीपिका, वेयर वर यू born and brought up? Sir, I was born and brought up in Chachai. आपका जन्म एवं लालन पालन कहाँ हुआ था? सर, मेरा जन्म और लालन पालन चचई में हुआ था। नम्रता, where were you born and brought up? Deepika, I born and brought up. I was born and brought up in Rewa, Madhya Pradesh. नम्रता, आपका जन्म और लालन पालन कहाँ हुआ था? दीपिका, मेरा जन्म और लालन पालन रीवा मध्य प्रदेश में हुआ था। Nidhi, where were you born and brought up? I was born and brought up in Bargi. In Bargi Dam? No, सहपुरा बर्गी। मम्मा, अरे मम्मा, ये कौन सा वर्ड है? ये कौन सा वर्ड है? बताओ मम्मा, ये कौन? Namrata, please complete the process. निधि, आपका जन्म, आपका लालन पालन कहाँ हुआ? नम्रता, मेरा जन्म और मेरा लालन पालन बर्गी में हुआ था। रोशनी, when were you born and brought up? Sorry. Sorry, Nidhi.
Sorry, where were you born and brought up? Rosni, Neeta ji, Neeta ji, Yeah, where were you born and brought up? Nidhi, I were born and brought up in कर्णप्रयाग उत्तराखंड. नीता जी, आपका जन्म और आपका लालन पालन कहाँ हुआ? निधि, मेरा जन्म और लालन पालन उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में हुआ. रोशनी, where were you born and brought up? दोस्तों आपको जागना होगा। पिछली बार निधि ने रोशनी का नाम लिया था, वो नहीं है। इस बार नीता जी रोशनी का नाम ले रही, मतलब कंसंट्रेशन कहीं तो कम है। सॉरी सर. नेहा, where were you born and brought up? I was born and water, Sapraburgi. Sorry, Neha, come your pronunciation. No, I was something is missing. I was born and water, uh, Sapraburgi. Come again. Sorry, Neha. Didi, Moha Maya is missing. I was born and water, Sapraburgi. Sorry, Neha. अच्छा, बर्गी डैम में वाटर है. ओके, गॉट इट. नेहा, आपका जन्म और लालन लालन पालन कहाँ हुआ? Sorry, Neha ji, he has to rectify her. Okay. Okay, Neha, I was born and water. Didi, कहाँ I जल know. गई? कहाँ Sapraburgi. जल गई थी नेहा? नेहा कहाँ जल गई थी, बताइए पहले. Born. जल गई थी बन. जी, I born ना. One. सामने तो लिखा है, देख के गलत पढ़ लो। One. The I was born and water. Sapraburgi. So there you are. Sorry, Sapraburgi. Neha. दीदी, आपकी मोह माया मिसिंग है, तो इस Okay, को zoom okay. करके देखो। I was born and water in Sapraburgi. Sorry. दीदी, हमको पता कि वो बरगी में पानी है, वाटर है, हम सब जानते हैं कि बरगी डैम में पानी है। And we also know you are not a fish. Okay, I was born and what a I was नेहा born जूम, and प्लीज what a स्क्रीन को जूम कर लो. जूम करके उसको I रीड was करो. I was born and what a Sapraburgi. फिर माया जाल छोड़ दिया आपने। Oh, okay, strong. I was born and what a what I was born and brought up in Sapraburgi. No?
Okay, it will The do. please, the Oh please dear, help. you are. But the please help. ये गलती बार बार होगी. You are pronunciating brought word wrongly. So you should correct. जैसा कि स्क्रीन में I दिख was रहा है ना, तुम पढ़ सकती हो ना, brought and born ऐसे करके. okay. I was one and wrote सहप्रवर्गी. दीदी आप ब्रॉड बस हुई हूँ अपने ही हो पाई. Brought up सहप्रवर्गी. The complete the process. Something is missing, sorry. I was born and brought up सहप्रवर्गी. अब बार बार मोह माया क्यों छोड़ देती हूँ. Okay. दलदल में फंस नेहा, आप जाऊँ. देख लीजिए कि नहीं बॉर्न एंड बॉटअप के बाद कुछ लिखा तो नहीं है। नहीं दीपिका दी, जब दलदल में फंसना नहीं होता है जब फंस जाती हैं, और जब फंसना होता है तो बाहर आ जाती हैं. I was born and brought up in सहप्रवर्गी. नेहा तुम सही बोल रही थी पहले, Oh तुम्हारा dear, you पूरा are. सेंटेंस सही था. Okay. I was born and brought up वेरी सहप्रवर्गी. गुड. Thank you. दीदी. एक वर्ड मिस कर दिया. Brought up ब्रॉटअप के बाद. अपना in Yes, so there you are. I was brought I was born and brought up in सहप्रवर्गी. Wow, so nice. Oh dear, you are. Complete the process. दी. नेहा, आपका जन्म और लालन पालन कहाँ हुआ था? दी मेरा जन्म और लालन पालन सहप्रवर्गी में हुआ था. दी बट मैंने इन पहले भी लगाए थे, इसके पहले नेक्स्ट टाइम आफ्टर टाइम में मैंने यूज किया था. When बट you are सॉरी when मुझे. when you are हाँ using नेहा, in. तुम सही कह रही हो, तुमने सही लगाया था इन, लेकिन तुमने No, ब्रॉटअप जो बोल रही थी ना, वो तुम सही से प्रोनाउंसिएट नहीं कर रही थी. when she is using in, नो the pronunciation is wrong. ओ And when she pronunciate right, so she miss in. ओ थैंक यू दी. I am not D. I am bro. Shivansh is telling me thank you, आई एम not to टेलिंग you. नम्रता दी. Okay, please. But Namrata Didi is still mute, na? आई एम I'm थैंक speaking. यू फॉर नम्रता दी. Ah, now you are right. Why are you expecting thank you from Neha? No, She's I am not telling me. expecting thank you. Okay, thank you, Shivang. Where were you born and brought up? To whom are you asking? Mini, where were born and brought up? Pronunciation wrong. Where is, sorry for pronunciation. Okay, Mini, were were you born and brought up? I was born and brought up in Khandwa, Madhya Pradesh. मिनी आपका लालन पालन कहाँ हुआ था? मेरा जन्म और लालन पालन खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ था. शिवांग भैया, वेयर वर यू born and brought up? I was born and brought up in Patan. शिवांग भैया, आपका जन्म और लालन पालन कहाँ हुआ था? मेरा जन्म और लालन पालन पाटन में हुआ था. निशा दीदी, are you there? Is you there? She is not there. So I am asking to Deepika Didi. Deepika Didi, where was you born and brought up
Sorry, Shivang. Where were you born and brought up? I was born and brought up in Anuppur. दीदी आपका जन्म और लालन पालन कहाँ हुआ? मेरा जन्म और लालन पालन अनूपपुर में हुआ। सर ऑल आर डन। सर एक क्वेश्चन है, इसका एक हिंदी और भी हो सकता है बच्चों, पली बढ़ी या पले बढ़े, ऐसा भी हिंदी और कई हिंदी हो सकते हैं। और नम्रता, तुम जो बार बार नेहा को बोल रही थी ना बेटा कि वो लिखा तो है पढ़ लो, लेकिन हमारी प्राथमिक शिक्षा की कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिस पे शायद तुम्हारा ध्यान नहीं गया होगा। हम बच्चों को देखते रहते हैं तो हमें उससे पता है। इसको बताना पड़ेगा नेहा को कि बा में आ की मात्रा ऊपर चंद्रमा, चंद्र बिंदी नहीं बौ, और जब भी रा की रेफ लगती है उसका उच्चारण पहले होता है शब्द से, रा की रेफ बाद में लगती है नेहा, तो इसको बोलते हैं बॉर्न। बॉर्न, रा का उच्चारण पहले हो जाता है, रेफ बाद में लगती है, उच्चारण पहले होता है। ये नियम है हिंदी व्याकरण का। बौर, बौर, रा यहाँ आ रहा है, बॉर्न। और ये रा की रेफ नीचे लगी हुई है। ये रा की रेफ वगैरह की समस्या बच्चों में हमने देखी है, तो तुम्हारे लाख बोलने से उसको इसका नहीं पता नहीं है। बा में नीचे रा की रेफ, ऊपर चंद्रमा, ब्रॉट, ब्रॉट। एक्चुअली उसको अपने पहले वाले बंदे को ध्यान से सुनना चाहिए और सीसी नहीं देखना चाहिए। और एक समस्या और है, अंग्रेजी का से दूर रहने के कारण, अंग्रेजी का कम प्रयोग करने के कारण हमारी हिंदी मीडियम वालों की जीभ वैसे पलट नहीं पाती है अंग्रेजी शब्दों के हिसाब से। इसलिए जो हम मंत्रा देते हैं उसको हमने मंत्रा नाम दिया है कि आप उसको बार 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 जाप करें। एक तो वही है चेकोस्लोवाकिया। सर 11 बार जाप और 5 बार गुरु मंत्र की आहुति। हाँ। 100 अपन लोग बोल देंगे। और सही है, तो तुम लोग थोड़ा ऐसे आपस में बतिया लिया करो। एक्चुअली इसके लिए 5 पंडित भी लगेंगे फिर। पंडित अंडर की जरूरत नहीं है, खुदा ही कर लो। आहुति थी ना, तो उसमें साथ में 5 पंडित भी लगाने पड़ेंगे ना। पंडित शिवानंद महाराज मौजूद तो है, उनको फोन कर लो। चलो दोस्तों, विदा लेने का समय आ गया, ज्यादा हो गया है, तुम लोग जारी रखो। Sir, could I ask one question? आज नहीं बेटा, व्हाट्सएप में पूछो। चलो, Okay, sir. थैंक यू सर, गुड नाइट। एक्चुअली मेरी फिर से छुड़ा दिया। एक्चुअली दीदी मेरी वाकई में जीभ नहीं वैसे पलट रही थी। मेरे साथ ऐसा होता है कभी कभी बहुत सी चीजों के लिए। यहाँ से एक चीज और बनती, वक्रतुंड बोलते, वक्रतुंड लगा दी बट इसको स्लोवाकिया बोला करो ना, 12 बार मंत्रों का उच्चारण किया करो। राइट नाउ आई एम योर पंडित, इसलिए बता रही हूँ। और इसका भी जाप किया करो, while your leisure measure your treasure with pleasure। दीदी there are 4 पंडित, दीपिका दीदी, निधि दीदी, नम्रता दीदी एंड आई। यस ओके। जब भी मुझे यहाँ नेहा, right now I am your pandit and I am suggesting one mantra to you. This is a tongue twister which is given by sir. So you should try this while your leisure measure your treasure with pleasure.
and Czechoslovakia also. Okay, thank you, Pandit ji.